پہلے اس کو گھر سے نکال دیا بیچاری کو، پھر مجھے نکال دیا. کیا ان کے گھر میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے؟ ساس کون ہوتی ہے مجھے ڈیورس دینے والی؟ اگر میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دیا تو ہسبینڈ سامنے آئے. قبرستان میں بھی آخری رسومات میں میرے ہسبینڈ شامل نہیں ہوئے. کیا ان کو اپنی بہن کا صدمہ نہیں تھا؟ میری عزت پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. 2 عیدیں آئی ہیں، چھوٹی عید بھی، بڑی عید بھی، رمضان بھی ہے. بھائی کو تو بہن بہت بری لگتی تھی، وہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ حمیرہ ہمارے گھر میں ہے. کوئی آیا اس کو ٹانگوں کو 2 پکڑا، اس کو کندھوں سے پکڑا، اس کو پھینک دیا، اس کے ہاتھ ویسے ہی مڑ گئے. یہ مرڈر ہے، یہ قدرتی موت نہیں ہے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. جی بالکل ناظرین، حمیرہ کی جو بھابی ہے وہ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. ان سے جانتی ہیں کہ گھر کے اندر جو کیا ماحول تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی شادی کب ہوئی ہے؟ میری شادی 2012 میں ہوئی ہے. 14 سال ہو گئے شادی کو. 14 سال شادی کو ہو گئے ہیں. اور اس ٹائم حمیرہ اس گھر میں موجود تھی؟ جی حمیرہ وہیں پہ رہتی تھی، ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن وہ صرف نا تب آرٹسٹ میں زیادہ تھی، وہ پینٹنگ زیادہ بناتی تھی تب. ٹھیک ہے. اور کتنے بہن بھائی ہیں یہ 2 بہنیں 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو گھر میں کیا ماحول تھا؟ بھابی اور نند کا تو بڑا ایک پیار اور بڑا اچھا رشتہ جو اختیار کر جاتا ہے ماحول کے حساب سے. آپ کے ساتھ کوئی ایسی باتیں شیئر کی ہوں کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں؟ گھر میں کس کا زیادہ پریشر تھا کہ اس فیلڈ میں ہماری بچی نہ جائے؟ میرے ساتھ وہ فرینڈلی رہتی تھی، فرینڈ کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی، ہر بات شیئر کرتی تھی. اس کی مدر اس کو فل سپورٹ کرتی تھی. لیکن جو نوید اصغر ہے اس کا چھوٹا بھائی اور میرے جو سسر تھے وہ اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے تھے. وہ اس کو منع کرتے تھے کہ تم نے اس انڈسٹری میں نہیں جانا، لیکن ان کے خلاف ہو کے اس انڈسٹری میں گئی. وہ کہتی میری مرضی ہے، میں نے خود اس انڈسٹری میں جانا ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کی؟ جی میری اگست میں بات ہوئی ہے، 2024 میں اگست میں بات ہوئی ہے میری. تو کیا آپ کو میسیج دیا؟ کس تکلیف میں تھی اور کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں، فون کیا اس نے مجھے، کہتی ہما میں تمہیں نا اپنا ID کارڈ فارورڈ کر رہی ہوں اور تم مجھے نا ایک میسیج سینڈ کرو. میں نے کہا کیا؟ کہتی تم نے یہ میسیج سینڈ کرنا ریکارڈ کر کے کہ حمیرہ تمہارا ID کارڈ میرے پاس ہے. اور بہت جلدیوں میں بولی جا رہی ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. تو فون نا بند ہو گیا. اس کے بعد وہ میسیج میں نے نہ سینڈ کیا اور نہ اس کے ساتھ میرا دوبارہ کوئی بات ہوئی ہے اس سے. اچھا آپ کی ڈیورس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری ڈیورس نہیں ہوئی، مجھے گھر سے نکالا گیا ہے. گھر سے نکالا گیا کیونکہ میڈیا پہ یہ کافی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہما کی جو ڈیورس ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا اب کوئی جائیداد کا ایشو ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اب مین ہم ٹاپک پہ آتے ہیں اس پہ حمیرہ کے. جب اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ ملی ہے کراچی کے اندر، آپ تک اطلاع کیسے پہنچی ہے؟ ان کے گھر والوں تک کیسے پہنچی اطلاع؟ میں وہاں نہیں رہتی، سسرال میں نہیں رہتی، میں اپنی سسٹر کے گھر آ رہی ہوں. مجھے میری سسٹر نے بتایا کہ ہما نیوز چل رہی ہے حمیرہ کی، اس کی لاش ملی ہے، تو جلدی سے دیکھو. میں نے نا جلدی سے نیوز دیکھی. میں نے جب دیکھی تو میں نے نا اپنی ساس کو فون کیا. میں نے کہا امجن یہ نیوز چل رہی ہے دیکھی آپ نے؟ اور میری ساس رو رہی تھی، کہتی ہاں میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ پولیس میں کمپلین کر دیتے، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی. اگر آپ کمپلین کر دیتے تو شاید یہ دن نہ آتا. تو ساس کہہ رہی ہے مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہونا ہے، تو اگر میں کر ہی دیتی کمپلین. تو انہوں نے میرا فون بند کر دیا. دوبارہ ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. میں وہاں نہیں اور مجھے نہیں پتا ان سب کی کیا کیفیت ہے، ان سب کی کیا فیلنگ ہے، مجھے نہیں پتا. بس مجھے اپنی فیلنگ کا پتا ہے کہ مجھے بہت دلی بہت افسوس ہوا ہے کہ جو میرے ساتھ خوفناک حادثہ ہوا ہے. 10 ماہ کے اندر اس کی فیملی میں نے بھی رابطہ نہیں کیا. آپ کی بھی لاسٹ جو بات ہوئی ابھی آپ نے بتایا آپ نے بھی نہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. جب اس نے اپنی مدر کو فون کیا نا لاسٹ بار کہ مجھے نا امجن میں بڑی پریشان ہوں، مجھے نا پیسوں کی ضرورت ہے. اس کی ماں نے بولا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کہتی اب نا میرے لیے دعا کریں، میرا نا یہ پرانے نمبر سارے بند ہو جائیں گے، میرا نیا نمبر آپ نے نا اس میں کانٹیکٹ کرنا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی لیکن گھر میں آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. میری ساس نے میرے کے بھی ذکر نہیں کیا. جب 1 ہفتہ گزرا نا ساس نے اس کو کال کرنے لگی ہے تو دیکھا کہ اس کے نمبر سارے بند جا رہے تھے، نیا نمبر بھی پرانا بھی. تو میری ساس نے مجھے بتایا کہ اس کو نا کال کرو میسیج کرو. میں نے انسٹا پہ فیس بک پہ اسنیپ چیٹ پہ ہر جگہ میسیج کیا، اس کا سب کچھ بند جا رہا تھا. میں نے کہا مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. تو کافی دیر گزری، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے. کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ حمیرہ سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہ ہو، لیکن اس بار تو کافی منتھ ہی گزر گئے تھے. میں نے اپنی ساس کو بولا پولیس میں کمپلین کرتے ہیں. ساس نے بولا نہیں رہنے دو، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، باتیں کریں گے ان کی بیٹی اتنے من سے غائب ہے. تو انہوں نے پتہ ہی نہیں کیا، میں چپ کر گئی. لیکن میں نے نا نیٹ پہ سرچ کیا سندھ پولیس کا، میں نے ان کا نمبر ڈائل کیا اپنے فون سے. میں نے ان کو بولا کہ میں نے نا حمیرہ ایسی میری نند ہے وہ لاپتہ ہے کافی دیر سے، تو مجھے نا کمپلین لکھوانی ہے. وہاں کی پولیس نے بولا کہ آپ نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ ریلیشن میں بھابھی کا ریلیشن ہے، خون کا نہیں ہے، تو آپ نہیں کروا سکتی. بھائی بہن ماں باپ آ کے کروائیں، آپ نہیں کروا سکتے. انہوں نے میری بات ہیلپ نہیں کی. میں نے فون بند کر دیا. میں نے اپنی ساس کو بتایا. ٹھیک ہے.
सास ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी चुप कर गई। फिर मैंने भी कोई यानी कि, लेकिन माइंड में एक बात ज़रूर थी कि हुमैरा अचानक सडनली कहाँ चली गई। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि नंबर भी बंद हो, सब कुछ बंद हो। हमारे माइंड में यही थी कि किसी ने इसको किडनैप कर लिया है या वो आउट ऑफ कंट्री चली गई है, उसने नंबर चेंज कर लिया है, वो हमसे रब्ता नहीं करना चाहती। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसके इतना बड़ा उसके हादसा हो चुका है। अच्छा, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि इसने 10 लोगों को मैसेज किए थे, 10 लोगों को मैसेज किए हैं और उन 10 लोगों में से किसी का रिप्लाई नहीं आया। और 10 लोगों में कौन कौन है, उसमें आपका भी कोई नंबर आया जिस पे आपको मैसेज आया या उसके घर वालों को मैसेज आया हो उसका? नहीं, मुझे मैसेज नहीं आया। अगर मुझे मैसेज आया होता तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करती, उसको कॉल मैं ज़रूर करती, क्योंकि जब भी वो मुझे मैसेज फ़ोन करती थी मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करती थी कि तुम्हारी मिस कॉल आई है, फ़ोन आया। न्यूज़ में सुनने में यही आया कि मेरा छोटा देवर है ना, जो नवीद असगर, हुमैरा ने उसको मैसेज किया है कि मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन उसके भाई ने भी उसको रिप्लाई नहीं दिया। छोटे भाई ने? जी, छोटे भाई ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। अब क्यों रिप्लाई नहीं दिया? भाई को जब पता था मेरी बहन ने मुझे रिप्लाई मैसेज किया है, तो फिर भाई को फिर पता होना चाहिए कि मेरी बहन 8 मंथ तक गायब है, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। इसमें कोई ना कोई तो राज है ज़रूर। लेकिन ये भी तो देखे ना कि 10 माह हो गए हैं, 9 या 10 माह, 2 ईदें आई हैं, छोटी ईद भी, बड़ी ईद भी, रमज़ान भी है, हर त्यौहार आया है, किसी ने रब्ता ही नहीं किया। लाख इख्तलाफात जो होना बच्चों के साथ वालिदैन के, लेकिन वो ख़बर लेने के लिए, खैर के आफियत के लिए जो है ना, एक मैसेज या कॉल तो करती हैं। लेकिन 10 माह के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, किसी ने रब्ता ही नहीं किया। मैं खुद ही एक्चुअली वहाँ से रोज़ों से मुझे घर से निकाला है, मुझे मेरे बच्चों के, मैं उस घर में नहीं रहती। और उनकी क्या फीलिंग है, उसके बाप के दिल में यही बात थी कि हुमैरा ने इस शोबे में कदम क्यों रखा। भाई के दिल में भी, भाई को तो बहन बहुत बुरी लगती थी, वो ये चाहता ही नहीं था कि हुमैरा हमारे घर में है। लेकिन उसका बाप का घर, माँ का घर था, वो आती थी, 1 मंथ बाद आती थी, 2 मंथ बाद आती थी, 8 मंथ बाद आती थी, साल बाद आती थी, आके और रह के चली जाती थी। लेकिन इन दोनों बहन भाइयों की ना अनबन चलती रहती थी, हुमैरा की और नवीद की ना, इनकी नहीं बनती थी। और वो इस शोबे में क्यों गई? क्योंकि इसके घर वालों ने इसके साथ नहीं दिया। अगर वो साथ दिया होता तो शायद वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर ना जाती। वो किस तकलीफ़ में थी, किस अजियत में थी, भूखी थी, प्यासी थी, क्या कुछ उसने जो है ना उस टाइम पे वो चीज़ें फेस की हैं, महसूस की हैं। लेकिन जो उसके इर्द गिर्द इतने क्लोज थे, उन्होंने भी नहीं रब्ता किया। कुछ जो बच्चे होते हैं ना डिसेबल या गरीब, उनकी हेल्प करती थी बड़ी, ठीक है, उनमें से किसी ने नहीं रब्ता किया। कोई इनका मेकअप आर्टिस्ट है, ड्रामा इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी ने भी नहीं रब्ता किया। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि 10 माह एक जो फीमेल है उसके साथ आप काम कर रहे हैं, 10 माह से वो आपके साथ रब्ते में नहीं है, एकदम उसका कट आउट कैसे हो गया? हाँ, ये बात माइंड में आती है कि जहाँ वो रह रही थी वहाँ एक आया भी थी काम वाली, जो उसके घर जाती थी। जी, आया भी थी उसके घर में? उसके घर में एक काम वाली भी थी। हुमैरा वो तो बता रहे हैं कि सिर्फ एक फ्लैट और हुमैरा अकेली थी, और जो नीचे वाले फ्लैट थे वो भी 3-4 माह से खाली है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। नहीं, हुमैरा के काम वाली अब आप बता रही हैं। हुमैरा के घर एक काम वाली भी आती थी, उसके कपड़े प्रेस करती थी, उसके कपड़े धोती थी, उसके घर के बर्तन वॉश करती थी और खाने में उसके साथ हेल्प करती थी। और मुझे हुमैरा ने खुद बताया था कि वो आया उसको दाल कभी बना के देती, कभी चावल बना के देती, क्योंकि हुमैरा को कुकिंग नहीं आती थी। और मैं भी ये सोचती हूँ कि इतने मंथ वो काम वाली ने भी किसी को नहीं बताया कि ये मैं दरवाज़ा नॉक करती हूँ, अंदर से कोई आता नहीं है, या इस घर में जो थी वो कहाँ गई। मालिक मकान है, उसने 1 मंथ 2 मंथ, हमारा किराए पे रहते हैं, मालिक मकान 1 महीना ना हम लोग किराए दे, वो तो हमारे दरवाजे से जाएगा नहीं। तो मालिक मकान ने 8 महीने कैसे गुजारा किया? बात ये सोचने की है ना कि अगर उसने लास्ट टाइम इन ड्राइव करवाई है, कहीं गई है, वो वापस कैसे आई? अच्छा, सोचने की ये बात है कि वो वापस कैसे आई। वापस की कोई भी नहीं निशानात मिले, जाने की मिले, आने की नहीं मिले, और घर में वो कैसे पड़ी हुई मिली। टांगे उसकी खुली हुई है, कोई आया उसको टांगों को 2 पकड़ा, उसको कंधों से पकड़ा, उसको फेंक दिया, उसके हाथ वैसे ही मुड़ गए। ये मर्डर है, ये कुदरती मौत नहीं है। और वो ख़ुद को प्यार बहुत ज़्यादा करती थी, वो अपनी जान नहीं ले सकती, उसको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार था। अच्छा, घर में ज़्यादा जो है उस पे कौन, मतलब कि उसको इस फील्ड से, छोटा भाई आपने बताया, उसको लाहौर से
वो खुद अपनी मर्जी से शिफ्ट हुई है कराची या घर वालों के जो है कहने पे गई है? जब घर में हर वक्त किचकिच चलेगी ना हर वक्त, तो एक इंसान तंग आ जाता है। और वो अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक थी। वो कहती थी कि मैं घर में किचकिच, वो कहती थी कि मेरे पे इन्वेस्टमेंट करें, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करवाया, आपके घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई, मुझे एक गाड़ी दे दें। इसके घर वालों ने उसको गाड़ी नहीं दी, बाप बेटे ने गाड़ी नहीं दी उसको। उसने कहा कि मैं रोज़ के किराए नहीं भर सकती, आप मुझे दें गाड़ी दें, मैं गाड़ी चलाती हूँ। अब पैसा, मैंने शादी कभी भी नहीं करनी, कहती थी शादी नहीं करनी, मेरा जो हक बनता है, मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे, मैं कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ और मैं यहीं रहूँगी। लेकिन उसके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मदर उसके लिए लड़ती थी, झगड़ती थी, मदर उसे प्यार करती थी, मदर रोती भी थी कि बेटी मेरी नहीं मिल रही। लेकिन उसने ये कदम इसलिए उठाया कि क्योंकि घर वालों ने साथ नहीं दिया, उसको ये कदम उठाना पड़ा कि उसको शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो घर से जब आप वहाँ पे मौजूद थी उस टाइम हुमैरा गई है वहाँ पे? हाँ जी, मैं वहीं पे थी। 2016-17 की बात है जब वो घर से कराची गई थी। अच्छा मम्मी जी, ये बताइएगा कि फ्लैट में तो कोई भी नहीं था और वो उसके जो इर्द गिर्द हैं वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है, किस फ्लैट में है, कब आ रही है, कब जा रही है। चलें जी, नीचे वाले फ्लैट में तो कोई भी नहीं रह रहा, कोई इर्द गिर्द साथ बिल्कुल फ्लैट खाली थे। कैसे अगर ये हो रही है, जो गए हैं इधर टीम गई है यहाँ पे, अगर ये ना जाती तो अभी भी वहाँ पे जो उसकी डेड बॉडी पड़ी होनी थी? जी बिल्कुल पड़ी होनी थी। बात ये है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको पता था अंदर डेड बॉडी है, तो वो फ्लैट छोड़ के भाग गए ना। अगर उनको स्मेल आई है और उसके कमरे की विंडोज़ भी खुली हैं, जबकि हुमैरा अपने कमरे में खिड़कियां नहीं खोल के रखती थी, घर में भी आती थी ना, उसने खिड़की नहीं खोलनी, चाहे जो मर्जी हो। जिसने कहना मुझे बाहर से शोर आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, डस्ट आ रहा है, वो खिड़की नहीं खोलती थी। और वहाँ की विंडोज़ किसने खोल के रखी? अच्छा, उस फ्लैट की विंडो भी खुली हुई, किसने खोली? उसके बैग भी वैसे ही पड़े सब कुछ वैसे वैसे। अगर एक बंदा घर में है, वो बेड पे बैठेगा, वो किचन में जाएगा, गिलास पानी। लेकिन जब उन्होंने बैलो वालों ने दरवाज़ा खोला है, सब कुछ क्लियर था, बेड भी साफ था, हर चीज़ क्लियर थी। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये तिब्बी मौत भी तो हो सकती है? नहीं, तिब्बी नहीं, इसके मर्डर ही हुआ है। तो क्या समझ रही हैं इस केस में? क्या अब आस पास के जो लोग हैं ना उनको पता है, लेकिन वो लोग अब सामने नहीं आना चाहते। अच्छा, हमने उनके चाचू का भी इंटरव्यू किया था, कब्रिस्तान के अंदर हमें मिले थे। वो कोई जायदाद का भी कोई इशू है कि नंद और भाभी जायदाद की वजह से वो बाहर चलेगी, जो कराची हुमैरा। ये क्या है इशू जो जायदाद वाला आ रहा है? वो आप पे जो बड़ी चीज़ें इस टाइम जो है ना, जायदाद का मैंने तो अभी तक की बात नहीं की कि मुझे जायदाद दी जाए, क्योंकि अभी मेरे ससुर हैं, हस्बैंड भी हैं, और मुझे घर से निकाला गया है देवर ने, हस्बैंड ने नहीं। ये मेरे देवर ने पहले ही मीडिया पे आके खुद ही ये बात की है कि हमने उसको डिवोर्स दे दिया है। हस्बैंड, देवर कौन होता है डिवोर्स देने वाला? और सास से इंटरव्यू लिया गया, सास ने भी ये बात की है कि उसको डिवोर्स हमने दे दिया है। सास कौन होती है मुझे डिवोर्स देने वाली? अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दिया तो हस्बैंड सामने आए। हस्बैंड सामने क्यों नहीं आ रहे? कब्रिस्तान में भी आखिरी रसूमात में मेरे हस्बैंड शामिल नहीं हुए, क्यों नहीं गए? क्या उनको अपनी बहन का सदमा नहीं था? क्या उनको अपनी बहन से प्यार नहीं था? क्यों नहीं गए? हर जगह हो सकता गए हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं गए। आपको कैसे पता है? मुझे पता नहीं गए वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, वो तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो तो लोगों के सामने नहीं आ सकते, लोगों में रश में ज़्यादा बात नहीं कर सकते वो अच्छा, एक उनका वीडियो क्लिप है ग्रे शर्ट में जो लेटे हुए हैं, वो वही है आपके? जी, वही मेरे हस्बैंड है। वो मेडिसिन खाते हैं और उन्होंने खुद ये बताया है कि मेरा भाई मुझे मेडिसिन देता है जो मुझे मर्ज़ नहीं है, मुझे इंजेक्शन लगाते हैं, मुझे वो मर्ज़ नहीं है जिस चीज़ की वो मुझे मेडिसिन देते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। तो क्या समझ रही हैं अब कि केस का रुख किस साइड पे जा रहा है? केस का रुख इस साइड पे जा रहा है कि देखिए, मैं मीडिया के सामने आई हूँ, मैंने सब कुछ बताया है, मैंने मास्क नहीं पहना, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर ये लोग सच्चे हैं तो सामने आए, क्यों नहीं सामने आ रहे? जायदाद की बात नहीं है, उसने अपने हक की बात की थी, जो उसका हक बनता है। और मुझे घर से इसलिए निकाला गया ताकि मेरे बच्चों का हक इनको ना देना पड़े। पहले उसको घर से निकाल दिया बेचारी को, फिर मुझे निकाल दिया। क्या इनके घर में औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है? नवीद की अपनी माँ की कोई इज़्ज़त नहीं है? नवीद की अपनी बीवी की कोई इज़्ज़त नहीं है? कि क्या औरत की इनके घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है? और वो जो कब्रिस्तान में बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो मेरे रिलेटिव ना, मेरे वो नाना लगते हैं। अच्छा, आपके नाना? मेरे वो नाना है, और नाना अपनी नवासी के बारे में क्या बात बयान करें, वो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल ऐसे। मेरी इज़्ज़त पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। 14 साल पहले इनको मेरी इज़्ज़त का नहीं पता चला, उनको अभी मेरे बारे में ट्रैक्टर में उंगली उठानी थी। क्यों? क्योंकि मैं मीडिया में आई और मैंने हुमैरा के हक़ की बात बोल रही हूँ, इस वजह से।
वो मेरे किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं। अगर मैं घर में इनको नज़र आ रहा है कि कपड़े सिलाई कर रही हूँ, इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं कपड़े क्यों सिलाई कर रही हूँ, इनको ये नहीं नज़र आया कि मैं कपड़े क्यों सिलाई कर रही हूँ? ये भी बात सोचने की है कि सिर्फ उनको यही बात बोलनी थी। ये सब कुछ करवाने वाला मेरा देवर है, वो खुद सामने कभी नहीं आएगा। आपने उसकी पहली कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जब वो कराची गया डेड बॉडी लेने के हाँ, लिए। वो कॉन्फ्रेंस उनकी आई है, लेकिन वो बता रहे थे कि मीडिया से बड़े इख्तलाफात हैं कि लिखा हुआ है जी, घर वाले जो है वर्सा हुमैरा के वालिदैन वो लाश लेने से जो है ना इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इसको नहीं एक्सेप्ट करना, हमने नहीं लेके जाना। तो इस पे क्या कहना है नहीं, आपका? क्यों ऐसी बात एक्सेप्ट? बिल्कुल ये आपने सच वीडियोस देखी है, हैं? ये बिल्कुल सच है। वो इनकार कर सकता है, जैसा वो इंसान है वो इनकार कर सकता है। जब मैंने अपनी वीडियो तो पहले लेनी डाली तो है, खुद ही की है ना अब। जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली है इंटरनेट पे, जब मैंने हुमैरा का सुन रही हूँ, मुसलसल सुन रही हूँ, मैंने उसकी हक की आवाज़ बोली है। फिर ये मेरी लोगों ने इनको बातें की कि आप लोग जाएं, लोग क्या कह रहे हैं, फिर इन्हें अपनी इज्जत के लिए फिर गई। अगर ये बात है। ये बात है, अगर ये इतने होते ना हुमैरा के सगे, तो जब इनको पहले दिन पता चला था ना, जब पहली न्यूज़ आई थी, तो ये तो हलचल मचा देते और ये तो भागे जाते, माँ भी जाती, भाई भी जाते, सारे जाते। लेकिन ये इन लोगों ने पहले इनकार कर दिया। अब अपनी बातों में ये पर्दा डाल रहे हैं ताकि हमारा सच लोगों के सामने ना आए। जी बिल्कुल नाज़रीन, वो सोचते हैं, हम देखते हैं, वो फुटेज देखते हैं कि वो किस अज़ियत में थी। वालिदैन को चाहिए जो भी है, इख्तलाफात लाख होते हैं, यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ बाके शादी भी कर लेते हैं ना, तो 6 माह, साल बाद, 2 साल बाद वालिदैन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गई है। लेकिन ये बच्ची तो अपनी जो फ्यूचर के लिए आगे निकली थी, फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, शोबिज़ में गई थी, लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस ये था कि वालिदैन ने तवज्जो ही नहीं की, किसी ने राब्ता नहीं किया। 2 ईदें गुजर गई हैं, हर चीज़ गुजर गई है, लेकिन हुमैरा का कोई अता पता नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।